Hello dear students, welcome on my channel. Now see question number 21st. If A and B are two events of the sample space S such that P of A equal to 0.5 and PB equal to 0.4, P of A intersection B equal to 0.2, then P of A dash under B dash is what? Your options are A 1 by 3, B 1 by 2, C 2 by 3 and D 2 upon 5. So how will you solve this question? You want to find that P of A dash under B dash. So P of A dash under B dash has direct formula. You can check in the last step. Before this, you should start the solution. How will you get this answer? The solution, since P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Because P of A, P of B and P of A intersection B given. So we should apply first main formula P of A union B equals P of A plus P of B minus P of A intersection B. So substituting the values, we get 0.5 plus 0.4 minus 0.2 equals 0.7. Now, what is PB dash? PB dash is 1 minus P of B. It is equal to 1 minus 0.4, subtracting we get 0.6. Since P of A union B whole dash equals 1 minus P of A union B. So we have P of A union B equal to 0.7. So substituting the value here, 1 minus 0.7 becomes 0.3. Now P of A dash under B dash equals P of A dash intersection B dash upon P of B dash. This is the main formula for P of A dash under B dash. But P of A dash intersection B dash, we have no value in the previous calculations. So P of A dash intersection B dash is P of A union B whole dash. So P of A union B whole dash is what? Here we have its value 0.3 and value of PB dash is 0.6. You can check from here. So P of A union B whole dash becomes 0.3 and P of B dash is 0.6. Simplifying, we get 1 by 2. That is option B. 1 by 2 is the correct option. Here it is B 1 by 2. Now see next question. The question is the particular solution of differential equation dy upon dx equals e raised to 2i into cos x if y equal to 0 and x equal to pi upon 6 is. And ये रहे options A e raised to minus 2i plus 2 sin x equal to 2, B e raised to minus 2i minus 2 sin x equal to 2, C e raised to minus 2i plus 2 sin x equal to minus 2 and D e raised to minus 2i minus 2 sin x equal to minus 2. So you have four options, but any one is correct. You have to find correct option by solving tricky calculations, or you can say solving in short form because you are solving for CET questions. So follow as far as possible in limited steps or in short steps, but correct answer. So how will you find its correct answer? You can check the solution. Since dy upon dx equals e raised to 2i into cos x, it is given dy upon dx equal to e raised to 2i into cos x. So first we apply here variable separable form. Therefore dy upon e raised to 2i equals cos x dx, taking dx on the right hand side and e raised to 2i on the left hand side. After variable separable form, integrating on both sides, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि integrating on both sides in the same step. So integral of dy upon e raised to 2i equals integral of cos x into dx. So integral of e raised to 2i dy, that is e raised to minus 2i dy. Taking in the numerator, we get here e raised to minus 2i dy. So integral of e raised to minus 2i dy becomes e raised to minus 2i upon minus 2 equals integral of cos x dx becomes sin x plus c, where c is constant of integration. Now we have few values here, y equal to 0 and x equal to pi by 6. So substituting these values in this equation, so put y equal to 0 and x equal to pi by 6. So we get here e raised to minus 2 into 0.
Therefore, e raised to 0 upon minus 2 equals sine pi upon 6 plus c. So e raised to 0 is 1. So we get here minus half equals pi sine pi upon 6, that is half, plus c. So c equal to minus half, and here it is plus half. So taking minus half on that side, we get c equal to minus half, that is c equal to minus 1. Now substituting c equal to minus 1 in this equation, we get particular solution is e raised to minus 2i upon minus 2 equals sin x minus 1, because value of c equal to minus 1. Therefore, multiplying by minus 2 on both sides, we get e raised to minus 2i equals minus 2 sin x, and minus 2 into minus 1 becomes plus 2. So we have particular solution is e raised to minus 2i plus 2 sin x equal to 2. That is option A is correct. You can check option A here. Option A, e raised to minus 2i plus 2 sin x equal to 2. So its option A is correct option. Now see next question. The combined equation of the pair of lines at a distance of 5 units from the line y equal to minus 1 is. पहले ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट. ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन बी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन सी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 24 इक्वल टू 0. So what is your question here? It is given that equation of line y equal to minus 1 and other two lines are 5 units from this line. तो आइए इस डायग्राम में समझ लेते हैं. यहाँ पर समझा देता हूं कि डायग्राम में क्या है. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ x axis and then y axis. So y equal to minus 1, that is y equal to minus 1 line here at point 0 comma minus 1. It passes through the point 0 comma minus 1. अब यहाँ से हमें 5 यूनिट डिस्टेंस अपवर्ड एंड 5 यूनिट डिस्टेंस डाउनवर्ड जाना है. तो अगर हम यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस अपवर्ड जाते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, -1, दैट इज 1 यूनिट. फिर यहाँ से 2, 3 एंड 4, तो टोटल मिला करके हमारा यहाँ तक हो जाएगा y इक्वल टू 4. ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 4. देखो यहाँ पर डिस्टेंस भी शो कर दिया हूं, अच्छे से समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस एक्चुअल में ये डिस्टेंस यहाँ तक होनी चाहिए. तो चलो इसको डिस्टेंस यहाँ तक आगे एक्सटेंड कर लेते हैं. तो ये डिस्टेंस जो यहाँ तक ही मार्किंग है, डिस्टेंस यहाँ तक कर लेते हैं. ये डिस्टेंस इस लाइन तक है, तो इस लाइन तक ये डिस्टेंस को 5 यूनिट एज्यूम करना है. ठीक है, ओके. तो चलो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से -1 से लेकर के 4 यूनिट तक हो गया y इक्वल टू 4. इक्वेशन ऑफ द लाइन तो y इक्वल टू 4 ही रहेगा, और ये हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस. और डाउनवर्ड भी -1 से 5 यूनिट डाउन जाना है, तो कितने पर हो जाएगा ये 0 -6, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू -6. तो वी हैव टू लाइन्स, y इक्वल टू 4 पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पर y इक्वल टू -6 नेगेटिव y एक्सिस. तो y इक्वल टू 4, देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट अपवर्ड, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स डाउनवर्ड. तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -6. तो इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर लेना है, विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन मींस y इक्वल टू -1. तो वी हैव इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन अवे फ्रॉम y इक्वल टू -1 5 यूनिट और y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -6. नाउ कंबाइंड इक्वेशन इज, तो इसका क्या हो जाएगा y -4 इक्वल टू 0, वी राइट हियर y -4, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y + 6 इक्वल टू 0, दैट इज y + 6 इक्वल्स 0. नाउ मल्टीप्लाइंग these two brackets and simplifying we get y square plus 2y minus 24 equal to 0. That is option, देख लेते हैं यहाँ से, y square plus 2y minus 24 equal to 0. That is option C is correct. So option C. Now see next question, that is question number 24th. The sum of focal distances from any point on the ellipse, which is ellipse 3x square plus 4y square equal to 1 is. So equation of an ellipse is 3x square plus 4y square equal to 1. It is given, but before solving the question, check your options. A 3 upon root 2, B -2 upon root 3, C -3 upon root 2,
and D 2 upon root 3. So you have 4 options for question number 24th. But you have to find the sum of focal distances from any point on the ellipse. तो from any point on the ellipse, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स नोट कर लेना है. क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. 3x square plus 4y square equal to 1, and then you have to convert it in the standard form of the ellipse. So it can be rewritten as x square upon 1 upon 3 plus y square upon 1 upon 4 equal to 1. क्योंकि देखो x square upon 1 upon 3, तो 1 upon 3 का रेसिप्रोकल करोगे फिर से 3x square रेडी. यहाँ पर 1 by 4 into y square, तो 4 by 1, यहाँ पर 4 by 1 into y square हो जाएगा और यहाँ पर 4y square equal to 1. तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स को नोट कर लेना है. नाउ कंपेयरिंग विथ x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. This implies that a square equal to 1 by 3 and b square equal to 1 upon 4. Now sum of focal distances equal to 2a equals 2 into 1 upon root 3, because value of a square is 1 by 3. So value of a is 1 upon root 3. So it is 2 multiplied by 1 by root 3 becomes 2 upon root 3. That is option D, 2 upon root 3 is correct. Now next one, question number 25th. If a bar, b bar, c bar, means if vectors a, b and c are three non-coplanar vectors, and vector p bar means vector p equal to b bar cross c bar upon box of a bar, b bar, c bar, and q bar equal to c bar cross a bar upon box of a bar, b bar and c bar, and r bar equal to a bar cross b bar upon a bar, b bar and c bar, then a dot p plus b dot q plus r dot c in the vector form equals what? So your options are A0, B1, C2, D3. You have 4 options, but any one is correct. Since A dot P plus B dot Q plus C dot R, now substituting the values, we get A dot B cross C upon ABC, because it is A dot P, so substituting the value of P is equal to this much. So A bar dot B cross C bar upon A bar, B bar, C bar in the box, plus B bar dot C cross A upon ABC plus C bar dot A cross B upon ABC. So we have A dot B cross C means box of ABC upon box product of ABC. Actually it is box product, it is dot and cross. So A dot B cross C becomes box of ABC upon box ABC plus here BCA, that is ABC upon ABC, plus CAB, that is ABC upon ABC. So we have here 1 plus 1 plus 1 equals 3. That is option D is correct, which is 3. Now see next question. 26th, the particular solution of the differential equation x log x into dy minus y into 1 plus log x into dx equal to 0 when x equal to e and y equal to e square is. So dear student, this question is very important. वैसे तो सभी questions important हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करना भूल जाते हैं, या पुट करते हैं तो कभी कभी आंसर्स रॉन्ग मिल जाता है. तो इसके लिए हमें करेक्ट सोल्यूशन सॉल्व करके बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट सोल्यूशन. Since x into log x into dy minus y into 1 plus log x into dx equal to 0, now it can be written as x log x into dy equal to y into 1 plus log x into dx, taking second term on the right hand side. Now using variable separable form. Variable separable क्या होता है? That is y terms dy के साथ कर लेना है और जितने भी x terms हैं वो dx के साथ. So it can be rewritten as dy upon y equals 1 plus log x upon x into log x into dx. अब देखो सभी x टर्म dx के साथ हैं और y टर्म dy के साथ है, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट. So integral of 1 upon y into dy equals integral 1 upon x into log x plus 1 upon x into dx. अब ये देखो 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स सेपरेट कर दिया और log x अपॉन x इंटू log x get cancelled, we get 1 upon x into dx. Now integrate each. Integral of 1 upon y dy log y
equals integral of 1 upon x into log x becomes log of log x because derivative of log x is 1 by x. तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं f dash x upon f x that is log of f x. So it is log of log x plus integral of 1 upon x that is log x plus constant of integration. Now put the values of x and y, x equal to e and y equal to e square. Therefore, log of e square equal to log of log e plus c. But log e square equal to 2 और यहाँ पर देखो log e का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड log 1 इज 0. यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू log e 1 प्लस c. तो हमें क्या मिलता है, देखो log e स्क्वायर दैट इज 2 log e, तो 2 log e 2 into 1 that is 2. तो 2 equal to 1 plus c. Therefore, c equal to 2 minus 1 that is 1. So we get constant term c equal to 1. That is particular solution is, अब क्या करना है, put c equal to 1 in this step. ये step में हमें c का वैल्यू रख देना है. So therefore log y equals log of log x plus 1. It is value of c. Now it can be written as log y equal to log of x into log x because log m plus log n becomes log m into n. तो log of x into log x plus 1 को हम log के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, log of e because log e equal to 1. So again it is log m plus log n that is log m into n. तो ये हो जाएगा log of e into x into log x. तो log y equal to log of e into x into log x. Therefore, y equal to e into x into log x. That is option B is correct. और ऑप्शन बी को एक बार वापस चेक कर लेते हैं. y equal to e into x into log x. So y equal to ex log x. This is the correct option and only one option is correct. Now see question number next, that is question number 27th. The combined equation of lines through origin making angles of measure pi by 6 with the line x plus 2y plus 7 equal to 0 is. तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंगल गिवन है और वन लाइन गिवन है, एंगल गिवन है और वन लाइन गिवन है, तो क्या करना चाहिए हमें. अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन. तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एंगल्स ऑफ मेजर पाई बाय 6 विथ द लाइन x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन पर तो चलेंगे ही, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं इनका ऑप्शंस क्या है. ऑप्शन ए 11x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑप्शन बी x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0. एंड ऑप्शन सी x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑप्शन डी 11x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस. नाउ चेक द सोल्यूशन. अब इस सोल्यूशन को चेक करके हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है और इसका सोल्यूशन कितने शॉर्ट फॉर्म में दिया जा सकता है. क्योंकि देखो सीईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से you have to save your time for the difficult questions or for the tricky question or logic based questions. Now see formula. सबसे पहले फार्मूला क्या है, tan थीटा यहाँ पर नोट कर सकते हो. tan थीटा इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तो यहाँ चेक करो पहले, देखो इट इज गिवन दैट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6 वैल्यू ऑफ थीटा एंड इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. तो स्लोप देखो, स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज माइनस 1 अपॉन 2. क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये डायरेक्ट स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है. फॉर एनी लाइन क्या लिखना है यहाँ पर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. लेट, तो एक स्लोप तो हमें यहां मिल गया, तो लेट स्लोप ऑफ द अनदर लाइन बी m. मतलब जो कंबाइंड इक्वेशन है उसका स्लोप क्या है, लेट स्लोप ऑफ द कंबाइंड इक्वेशंस बी m. तो उनका स्लोप m अज्यूम कर लेते हैं और फिर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो tan थीटा इक्वल्स
m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. So consider that m1 equal to m and m2 equal to minus half and theta equal to pi by 6, which is given in the question. You can check here. Since tan pi by 6 equals mod of m minus half upon 1 plus m into minus half. Now 2 into m, 2m minus plus, so 2m plus 1 entire upon 2, entire upon 2m, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into 1, 2 plus m into minus 1, that is 2 minus m upon 2. So 2 going by 2 in the denominators. Therefore 1 by root 3, tan pi by 6 का वैल्यू क्या होता है 1 by root 3 equals 2m plus 1 upon 2 minus m. पहले इसका वैल्यू देखो क्या आता है, पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो 2m plus 1 upon 2 minus m और tan pi by 6 आ गया 1 by root 3. इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन both sides. So taking squares on both sides, we get 1 by root 3 whole square equals 2m plus 1 upon 2 minus m whole square. Now expand it to 1 by root 3 whole square is 1 upon 3 equals 4m square plus 4m plus 1 upon 4 minus 4m plus m square. ये मिल जाएगा. इसके बाद हमें कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 3 into this. So 3 into 4m square plus 4m plus 1 equals 1 into 4 minus 4m plus m square. तो 1 यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Now 3 into 4m square, that is 12m square, and यहाँ पर क्या है plus m square. So 12m square minus m square becomes 11m square. Now 4m यहाँ पर है, यहाँ 3 है, तो 3 into 4m 12m, और यहाँ से minus 4m लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 12m plus 4m becomes 16m. Here 3 into 1 plus 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इस साइड -4, तो 3 minus 4 becomes -1 equal to 0. So we have 11m square plus 16m minus 1 equal to 0 after simplifying these two terms. अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है, बोलो व्हाट इज m, m इक्वल टू y अपॉन x. तो पुट m इक्वल टू y अपॉन x इन दिस इक्वेशन. वी गेट 11 into y square upon x square plus 16 into y upon x minus 1 equal to 0. Now multiplying throughout by x square on both sides. Therefore we get, तो हमें क्या मिलने वाला है 11y square plus 16xy minus x square equal to 0. Now rearranging the equation we get x square minus 16xy minus 11y square equal to 0. तो x square minus 16xy minus 11y square equal to 0, that is option C is correct option. यहाँ पर ऑप्शन C एक बार वापस चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये था अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट लाइन और लाइन यू कैन से. तो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और भी इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन अभी कमिंग वीडियोज में मिलने वाला है. तो आप देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज. और अभी तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28. The point at which the function f(x) equal to sin x plus cos x upon sin x minus cos x is discontinuous in the interval minus pi upon 2 is x is what, means for what value of x. So for what value of x f(x) is discontinuous in the interval minus pi upon 2 and pi upon 2. तो देखो कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जैसे यहां पर हमारा है इट इज रेशियो ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन एक्सप्रेशंस. इट इज अ रेशियो ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x. तो चलो देखते हैं कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है. और सबसे पहले कोई भी अगर इसका ऐसा इक्वेशन आता है तो हमें उसको सॉल्व करना चाहिए. ऐसा नहीं कि फंक्शन का क्वेश्चन है डिफिकल्ट होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा कि आजकल स्टूडेंट जो डाउट्स ज़्यादा पूछ रहे हैं
वो यही बताते हैं कि फंक्शंस चैप्टर डिफिकल्ट. नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल. यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट. ए, पहले तो ऑप्शन देखो. ए माइनस पाई बाई 4, बी पाई बाई 4, सी पाई अपॉन 3 एंड डी पाई अपॉन 6. सी द सोल्यूशन. सिंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इफ वी टेक डिनोमिनेटर एज जीरो, क्योंकि अगर जहां डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. तो नॉट डिफाइंड हो गया तो डिसकंटिन्यूअस ऑलरेडी हो जाएगा. तो चलो पहले इसके डिनोमिनेटर पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि इफ sin x minus cos x equal to 0, so what will happen? So therefore sin x equal to cos x. So this means sin x equal to sin of pi by 2 minus x, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या होगी, sin pi by 2 minus x is cos x. तो sin x equal to sin pi by 2 minus x. Simplifying we get 2x equal to pi by 2. Therefore x equals pi upon 4. तो x इक्वल टू पाई अपॉन 4 अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, न्यूमरेटर की कोई बात नहीं, न्यूमरेटर ऑलवेज अगर जीरो भी हो गया, कुछ भी हो गया तो भी चलेगा. लेकिन यहाँ साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, दैट इज समथिंग अपॉन 0. यहाँ 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 2 अपॉन रूट 2 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड. तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 4. तो हमें ऑप्शंस में यही चूज करना है, बी. That is option B is correct. Means अगर pi by 4, और ये देखो pi by 4 lies in the given interval also, minus pi upon 2 and pi upon 2, minus 92 plus 90 के बीच में क्या आता है 45 डिग्री. तो ये लाई भी करता है, और इसके अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शंस pi upon 4 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस. तो इस तरह से हमें ये मिला, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. और बहुत ही देखो एकदम सिंपल मेथड मैंने दे दिया है, तो कुछ इधर उधर भी जाना नहीं, कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, nothing. Directly you can solve and you can say it is discontinuous at x equal to pi upon 4. Now see question number 29, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही ट्रिकी सोल्यूशन मैं दे देता हूँ, जो कभी नहीं भूलेगा, और इसका आंसर भी एकदम सिंपल है, इजी है. तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इफ E1 and E2 are eccentricities of x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and y square upon b square minus x square upon a square equal to 1, then the value of E1 square plus E2 square minus E1 square into E2 square is. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इनके. तो योर ऑप्शंस आर A रूट 2, B 0, C 1, D 2. ये रहे 4 ऑप्शंस, बट एनी वन इज करेक्ट. तो देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है. अब सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशंस क्या हैं. दीज आर द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलास. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यू शुड नो दीज टू इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलाज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलाज. देखो फर्स्ट इक्वेशन का कॉन्जुगेट सेकंड है और सेकंड इक्वेशन का कॉन्जुगेट फर्स्ट है. तो इसमें हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी, ई फॉर व्हाट, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है इस हाइपरबोला के लिए, उसके लिए यहां पर नोट कर सकते हो ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है, ई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर द फर्स्ट हाइपरबोला. तो कंसिडर क्या यहाँ पर गिवन ही है कि E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ फर्स्ट हाइपरबोला एंड E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सेकंड हाइपरबोला. तो देयरफॉर E1, तो हम लोग यहाँ फार्मूला के साथ अगर सिंस लिखते हैं तो सिंस E1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द इसेंट्रिसिटी फार्मूला फॉर फर्स्ट हाइपरबोला. Similarly, eccentricity for the second hyperbola E2 square equals b square plus a square upon b square. तो सेकंड हाइपरबोला में क्या करना है, जस्ट इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो ऐसे देखा जाए तो दोनों का न्यूमरेटर सेम ही है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है,
क्योंकि प्लस साइन है, सो यू कैन एडजस्ट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो इसेंट्रिसिटी of first hyperbola means e1 square equal to a square plus b square upon a square, and eccentricity of the second hyperbola e2 square equals b square plus a square upon b square. There are two eccentricities. अब हमें क्या करना है कि therefore e1 square plus e2 square minus e1 square into e2 square. So you should substitute the values of e1 and e2 square and e2 square directly in this equation in the left hand side. तो इनको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 0. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और कैसे मिलेगा मैं यहाँ पर ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, चेक कर सकते हो. देखो ए स्क्वायर e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, पहले दो को ही ऐड करके देखो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ए रेज टू 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो याद रखना डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या हुआ वो देखते हैं. ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया. तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मीन्स यू कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हैं e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, ये दो को ऐड करने के बाद. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहीं पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट विल वी गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो यही पार्ट हमको इनको ऐड करके भी मिला है जो हमें इंटू करके मिलता है, और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन. तो सेम क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0. देयरफॉर ऑप्शन बी विच इज 0 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरह से हमको एकदम इजी वे में मैंने सोल्यूशन बता दिया. इजिली यू कैन सॉल्व आल्सो दिस क्वेश्चन. कोई भी डिफिकल्टी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको कोई भी जरूरत भी नहीं है कि हम इसको एग्जाम पीरियड में वहां पर इसको लिखें और सॉल्व करके देखें. देखो डायरेक्टली यू कैन चेक हियर. यहाँ पहले इनको सम कर लो, सम करने के बाद हमें क्या मिलता है, फिर से सुन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. और दोनों को प्रोडक्ट सामने ही दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, and subtract them we get 0. therefore option B is correct. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. यहाँ पर 30th क्वेश्चन में भी हाइपरबोला से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन आस्किंग है वो अलग है, डिफरेंट है. तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है. If E1 and E2 are the eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square equals what? Your options are A1, B0, C minus 1 and D2. ये हैं हमारे पास ऑप्शंस. तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की कंपैरिजन करें तो यू कैन से बोथ द क्वेश्चंस आर सेम. अगर हम यहाँ पर ऐसा भी लिखते कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, और ये रहे 4 ऑप्शंस A1, B0, C minus 1, D2, तो भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. तो ठीक है, चलिए आते हैं, अब देखते हैं. तो सब कुछ फार्मूला मैंने ऊपर प्रोवाइड कर दिया है, अब यहाँ कुछ लिखने के लिए बाकी है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ सोल्यूशंस ले लेते हैं कि सिंस 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल्स, अब देखो E1 स्क्वायर क्या है, E1 स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ओके, तो देयरफॉर 1 अपॉन E1 स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म. ये टर्म का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली 1 upon E2 square, but E2 square is B square plus A square upon B square. So reciprocal of this term is B square upon B square plus A square. Now we see that both the denominators are equal. A square plus B square, also here A square plus B square. So we can add numerator easily. So A square plus B square upon A square plus B square. क्योंकि डिनोमिनेटर को वन टाइम यहाँ पर लिखोगे कॉमन करके.
तो a square plus b square upon a square plus b square becomes 1. That is option A is the correct option. You can check here option A, 1 is the correct option for this question. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वैल्यू प्रोवाइड किया, जो वैल्यू एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है और इनके सेपरेट वैल्यूज भी आपको कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा कि इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई, ए एंड बी फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला, ये पार्ट है। और ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इसकी वैल्यू इसेंट्रिसिटी की ये होती है, ये दोनों याद रखना। तो किसी दूसरे क्वेश्चन में भी अगर पूछा गया तो यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। और अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट्स है, तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।